ان کا خیال تھا کہ سوات کے لوگ اور ملکنڈ کے لوگ ان کو ہم دھوکہ دیں گے اور یہ جلسہ گاہ میں آئیں گے اور ہم بے روزگاروں کے سامنے بیٹھ کے ہم جو پچھلے 70 سال تک اس قوم کو بیوقوف بناتے رہے دوبارہ بیوقوف بنائیں گے. لیکن الحمدللہ عمران خان کی آواز، میرے پرائم منسٹر کی آواز ہر گھر تک پہنچ چکی ہے اور اس کا ثبوت آج جو اس حلقے میں بنیر میں جماعت اسلامی کے لوگ دڑا دڑ خیبر پختونخوا پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے آج، یہ اس کا ثبوت ہے. میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ سوات میں آپ آئے، میرے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، ملکنڈ ریجن کے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا، خیبر پختونخوا کے لوگوں نے عمران خان کا ساتھ دیا. اب میں آؤں گا، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے، یہ بنیر میں ایک چھوٹا سا ٹریلر ہے جو صرف 2 دن کے انویٹیشن پہ ریاض خان نے مجھے انوائٹ کیا تھا کہ آپ آئے بنیر میں. یہ تو صرف 2 دن کے انویٹیشن کا کارنامہ ہے. جب ہم پوری تیاری کریں گے تو آپ کا کیا حال ہوگا. اور جو مولانا صاحب اب انشاءاللہ مولانا صاحب آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرم آنی چاہیے کہ مدرسے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نکال کے پنڈال میں بٹھا دیا ان کو، اور رات کی تاریکی میں ان کو 15 منٹ تقریر کر کے وہاں سے تم بھاگ گئے ہو. اور اس کے ساتھ اب انشاءاللہ میں بنو اور ڈی آئی خان آؤں گا اور میں بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز عمران خان کے ٹائیگرز آپ کے ساتھ ڈی آئی خان اور بنو میں کیا کرتے ہیں. اس کے بعد وہ شہباز شریف آئی جی، میں اس کو سن رہا تھا، ذرا سنیے، میں ان کو سن رہا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کو ہم ٹھیک کریں گے. اور بے شرم آدمی تو نے پنجاب کا بیڑا غرق کر دیا. اب خیبر پختونخوا میں جو پچھلے 5 سال اور اب الحمدللہ جو میرے 3 سال، اس میں آپ کو واضح فرق نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے. اور اس کا ثبوت یہ آج 3 سال پورے ہونے والا ہے میری حکومت کا، اور یہ لوگ جو میرے ساتھ یہ نوجوان جو کھڑے ہیں یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ڈیلیور کر رہی ہے. اس کے بعد اس بے شرم آدمی نے جب سوات اور ملکنڈ میں آپریشن ہو رہا تھا تو اس نے اٹک کو بند کیا تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ یہ ٹیررسٹ ہے، یہ پختون دہشت گرد ہے، ان کو پنجاب میں نہ آنے دے. اب کس منہ سے بے شرم آدمی تم سوات میں آ کے یہ بات کہہ رہے ہو؟ اور ان کے ساتھ جو لڑکی آئی تھی عورت، پتہ نہیں مریم اورنگزیب نام ہے کہ کیا نام ہے، میں نہیں جانتا ان لوگوں کو. اس نے ہمارے لگائے ہوئے ملم جبہ میں لوگ دھوپ میں کھڑے تھے، ورکرز ان کی دھوپ میں کھڑے تھے، اور وہ ملم جبہ میں ہماری زپ لائن کو انجوائے کر رہی تھی. یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں. جب میں ادھر آ رہا تھا میں نے ریاض سے کہا تھا کہ اسٹیج پہ کوئی آپ نے سایہ نہیں کرنا، میں اپنے ورکروں کے ساتھ اس دھوپ میں بیٹھوں گا. میرا لیڈر عمران خان دھوپ میں بیٹھتا ہے تو میں کون سی چیز ہوں کہ میں ان کے ساتھ دھوپ میں نہیں بیٹھوں گا. میں اپنے بھائیوں اپنے نوجوانوں کے ساتھ دھوپ میں بیٹھوں گا. اس کے بعد
जो मलम जबा के हवाले से वो बातें करते रहे कि मलम जबा स्कैंडल, ये आके उन्होंने खुद अपने आंखों से देख के वहां पर खुद एंजॉय करते रहे। ये बेशरम लोग, ये इतने बेशरम है ये। उसके बाद स्वात में शांगला से यहां पर अब्दुल मुनीम आया है, एक बंदा है उसका नाम है मीर मकाम, जानते हैं आप लोग ना उसको। ये स्वाद में आया था कि मैंने तो शांगला को बर्बाद कर दिया, अब मैं स्वाद के लोगों पे हुक्मरानी करूंगा। ओए बेशरम, स्वाद के लोग इतने बेवकूफ हैं कि वो तुम्हारे इख्तियार के नीचे काम करेंगे। जब हम इलेक्शन में जा रहे थे 2018 में, ये मेरे हल्के पे खड़ा था एनए के लिए, वहां पे ये अपनी स्पीच में कह रहा था, उसकी वीडियोस है, मेरे ख्वाहिश थी कि यहां पर स्क्रीन हम लगा लेते और वो वीडियो आपको सुनाते और दिखाते। उसमें ये कह रहा है, जब 2017-18 में आखिर में जब हमारी हुकूमत थी और सेनेट का इलेक्शन हो रहा था, तो ये कह रहा है कि मलकंड लोगों में, स्वात के लोगों में इतनी गैरत या अहमियत उनकी नहीं थी कि ये एक सेनेट का टिकट स्वात में देते। आप देख ले, आज इमरान खान ने स्वात और मलकंड को पूरा वजीर आला दिया है। वो अपनी स्पीच में कह रहा है कि अगर स्वात से कोई वजीर आला बना मलकंड से, तो मैं उसके काफिले में शामिल होऊंगा। और बेशरम शामिल हो, या फिर वो मैं कहता है कि मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये याद रखना मीर मकाम, पीटीआई में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, तुम चोर हो, डाकू हो। मुशर्रफ को अपना भाई कह के उसको लूट के उसके बाद अब तुम नून जैसे छोरों के साथ मिल गए हो। बेशरम आदमी शांगला का बेड़ा गर्क कर दिया है और अब तुम कहते हो कि खैबर पख्तूनख्वा तुम्हारे हाथ आएगा। जब तक इमरान खान जिंदा है और इंशाअल्लाह अल्लाह उसको जिंदगी दे और ये नौजवान उसके साथ होंगे, तो ये चोर दोबारा इख्तिदार में नहीं आएंगे। एक और बंदा जो कल मैं उसकी स्पीच सुन रहा था, क्योंकि आजाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं, वो मेरे लीडर को और मेरी हुकूमत को वो कह रहे हैं कि ये नालायक है, नाअहल है। वो नालायक नाअहल आदमी, तुम तो अंडों को वो किलो के हिसाब से बेचते हो और तुम तो आलू की कीमत दर्जन के बजाय किलो के बजाय दर्जन बताते हो। बेशरम आदमी, तुझे ये पता नहीं है कि आलू और अंडे दर्जनों पर बिकते हैं या किलो पे बिकते हैं। ये खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान का ये हुक्मरान बन गया तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए, फिर हमें यहां से हिजरत करना चाहिए। और ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक भुट्टो के नाम पे सियासत करेंगे? ये कब तक पाकिस्तान को लोगों को धोखा देंगे? ये और किसी को धोखा नहीं दे सकते, सिर्फ सिंध में ये धोखा दे रहे। और इंशाअल्लाह 2023 में जो इलेक्शन होगा, पूरे पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी इंशाअल्लाह। गिलगित बल्तिस्तान, मेरे बात सुन ले, थोड़ा सा सब्र कर ले। देखे पहले 2013 में अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पुख्तनख्वा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, 2018 में खैबर पुख्तनख्वा पूरा मुल्क और पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, पिछले 2019-20 में गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह अब 25 तारीख को शायद इलेक्शन हो रहे हैं, आजाद कश्मीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह 2023 के इलेक्शन में पूरा पाकिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर समेत कप्तान का होगा इंशाअल्लाह, कप्तान का होगा इंशाअल्लाह। ये कहते हैं, ये जिस तरह आज जो जेआई से जो नौजवान हमारे साथ शामिल हुआ और जो उसने बात की इमरान खान के हवाले से, हालांकि वो तो जुमात इस्लामी से शामिल हो रहा है, वो कह रहा था कि मैं जुमात इस्लामी के खिलाफ बात नहीं करूंगा, मैं भी नहीं कहना चाहता, लेकिन अब उसके
उस टांगे में सिर्फ 2 बंदे रह गए, एक सिराजुल्लाह है और एक इनायतुल्लाह है, बाकी कुछ नहीं है। और इंशाअल्लाह अब जो मौलाना फजलुर रहमान साहब की शामत आ गई है और जो शिरानी साहब ने जमीयतुल उलमा इस्लाम बना दिया है, तो ये भी इंशाअल्लाह 2 बंदों वाले टांगे में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये कहते हैं कि ये हुकूमत नालायक है, सिलेक्टेड है। मैं इनको बताना चाहता हूं, ये मेरा प्राइम मिनिस्टर है इमरान खान, जिसने अक़वाम मुत्तहिदा में कुल के इस्लाम की जो बात की, जो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के हवाले से बात की, और जो कुरान शरीफ के हवाले से बात की, और जो जिहाद के हवाले से बात की, ये तारीख में किसी ने किया है। और जो आपको दिवालिया मुल्क मिला था, जो दिवालिया मुल्क आपको मिला था, जो आपके हालात थे, खजाने की हालात थी, और जो अल्हम्दुलिल्लाह आज 4 से समथिंग ऊपर ग्रोथ है, ये किसने डिलीवर किया? ये इमरान खान ने डिलीवर किया। इंशाअल्लाह ये मुल्क अब आगे की तरफ जा रहा है। और सबसे बड़ी बात जो आज मेरी आंखें और मैं खुल के बताना चाहता हूं, मैं खान साहब को सलाम पेश करना चाहता हूं कि जो उन्होंने बात की, एब्सोल्युटली नॉट। हम अपने लीडर को सपोर्ट करते हैं, हम अपने लीडर के साथ खड़े हैं। और इंशाअल्लाह जिस तरह मैंने कहा, ये बेरोजगार का टोला और ये चोरों का टोला, इनकी सियासत खत्म हो गई है। इंशाअल्लाह 2023 में ये बिल्कुल फारिग हो जाएंगे इंशाअल्लाह। और जो प्राइम मिनिस्टर साहब का फ्लैगशिप प्रोग्राम है एहसास के हवाले से, इंशाअल्लाह ये अपने आप को एहसास में रजिस्टर करने जा रहे हैं। इंशाअल्लाह ये इस तरह होंगे इंशाअल्लाह। उस बजराशम पुख्तों के बस रसू खबर होगम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान का बुनेर में अवामी इज्तिमा से खिताब। उन्होंने कहा कि अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत पर पूरा एतमाद किया है और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत डिलीवर कर रही है। मज़ीद उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की आवाज़ हर घर तक पहुँची है और अब मुल्क तरक्की करते हुए आगे बढ़ रहा है।